Okay, so in the last lecture, we have seen that how to design the LL1 parsing table. Now, in today's lecture, we'll see how to validate a particular input string using a grammar, right? So, the last grammar that we have used was the arithmetic grammar, the grammar which can design the expression ID plus ID into ID or ID plus ID plus ID. These kind of expressions can be created with that grammar. So, we are going to validate that grammar using a stack by taking the input string, right? So for that, we will require a parsing table. So just to give the recap, हमने parsing table बनाई थी in which we had a column. So ID terminals थे column पे आपके पास ID plus multiplication. Then we had opening bracket, closing bracket and dollar. और आपके पास नॉन टर्मिनल्स थे ई डैश, देन टी डैश था और फिर आपके पास एफ था. ये आपके पास नॉन टर्मिनल्स थे. और आपकी टेबल की जो एंट्रीज आई थी वो किस हिसाब से आई थी, यहाँ पे प्रोडक्शन लिख लेते हैं. आपका फर्स्ट प्रोडक्शन ये था, सेकेंड प्रोडक्शन आपका ई डैश टेंड्स टू प्लस टी ई डैश था. थर्ड प्रोडक्शन वाज ई डैश टेंड्स टू नल. फोर्थ प्रोडक्शन था आपका टी टेंड्स टू एफ टी डैश. देन टी डैश टेंड्स टू स्टार एफ टी डैश. सिक्स प्रोडक्शन था हमारा टी डैश टेंड्स टू एप्सिलॉन. और सेवेंथ प्रोडक्शन था हमारा एफ डैश टेंड्स टू आई डी. एंड एथ प्रोडक्शन वाज एफ टेंड्स टू this, right? Acha, one more thing, it can happen with you that the grammar right now is given to you is completely the LL1, the grammar which is completely non-ambiguous. It is not left recursive and it is not non-deterministic. But it can happen in the exam or in the gate that the grammar is given to you is a grammar which is either ambiguous or the left recursive or the non-deterministic. So you have to remove that thing, right? और ये आपको मैंने last videos में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप left recursion या फिर determinism हटाते हैं. Fine. So first और follow हमने already इसके निकाले हुए थे. मैं सीधे entries लिख रही हूँ. So ID और opening bracket पे 1 था, then plus और closing bracket पे और dollar पे 3 था. प्रोडक्शन के नंबर्स लिख रही हूं मैं. Although it is expected that you will write the production in the cells, right? Full production in the cells, but because the cell width is less, so that is why I'm writing the production numbers over here. फिर T में आपके पास यहाँ पे 4 था, then आपका यहाँ पे 4 था, प्रोडक्शन नंबर 4. उसके बाद हम T डैश की बात करते हैं. So T डैश आपका जो है वो 6 था, प्रोडक्शन नंबर 6 null. Then it was 5, then it was 6, then it was 6. और उसके बाद F की एंट्री लिख लेते हैं. यहाँ पे 7 था, F tends to ID. और आपका जो ओपनिंग ब्रैकेट था इस पे F tends to ओपनिंग ब्रैकेट E क्लोजिंग ब्रैकेट, ये वाला प्रोडक्शन था. तो ये टेबल थी हमारी, राइट? नाउ अब हम यहाँ पर एक इनपुट स्ट्रिंग ले रहे हैं. तो सपोज इनपुट स्ट्रिंग है ID प्लस ID इंटू ID. एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपको क्या लगाना है, डॉलर लगाना है. तो हमने डॉलर लगा दिया. अब हमें इसे स्टैक से वैलिडेट करना है कि वेदर द स्ट्रिंग कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पार्सर और नॉट यूजिंग दिस ग्रामर. एंड वी आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द पार्स ट्री ऑल्सो. ठीक है, तो एक टेबल बनाएंगे, स्टैक बना लिया यहाँ पर, then input, and then we will select the production, which production you are selecting. And at last हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टेबल के बाद it is not a part of the table, pass tree बनाएंगे. Remember that it is not a part of the table. आपकी टेबल सिर्फ 3 कॉलम्स की है यहाँ पर,
ठीक है. Always remember stack will start with dollar and your input is given as ID plus ID into ID and last पे आपने dollar लगाना है. And in the stack, after the dollar, you have to put the start symbol. So what is your start symbol? Is capital E. तो capital E आपने यहाँ put कर दिया है. अब आप किस तरीके से move करेंगे? Capital E on ID. Capital E on ID. Which production is written over here? 1. What is first production? E tends to TE dash. ठीक है. So आपने क्या करना है? आपने select करा E dash, E tends to TE dash. So replace your E with the production. TE dash dollar. ये आपका production replace हो गया. And आपका input as it is हमने उतार लिया. अभी इनपुट में कुछ भी रिप्लेस नहीं होगा और हम फर्स्ट वाली इनपुट पर चल रहे हैं. नाउ टी, चेक टी ऑन आईडी. चेक टी ऑन आईडी. प्रोडक्शन नंबर 4. व्हाट इज प्रोडक्शन नंबर 4? टी टेंड्स टू एफ टी डैश. टी टेंड्स टू एफ टी डैश. ठीक है, तो इसे एज इट इज उतार लेंगे. डॉलर टी टेंड्स टू एफ टी डैश. सो टी इज रिप्लेस्ड विद एफ टी डैश. ई डैश को आप टच नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है. टी विल बी रिप्लेस विद एफ टी डैश. ई डैश डॉलर. नाउ एफ ऑन आईडी. एफ ऑन आईडी. प्रोडक्शन नंबर 7. व्हाट इज प्रोडक्शन नंबर 7? एफ टेंड्स टू आईडी. एफ टेंड्स टू आईडी. योर इनपुट इज आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी एंड लास्ट में डॉलर है. नाउ एफ इज रिप्लेस विद आईडी, तो यहां पर क्या हो गया? आईडी टी डैश E dash dollar. Now you need to remember one thing. When your stack is having terminal on the top and your terminal is matched with your input, then the top will be popped and your input is accepted. Your top will be popped. ID और ID match हो रहे हैं, तो आपने top को pop कर लेना है. तो हमने cross कर दिया. और किससे match हो रहा है? First input से, तो इसे भी cross कर दिया. अब क्या बचा यहाँ पे? T dash E dash डॉलर और यहां क्या बचा? प्लस ID इंटू ID डॉलर. ये बचा यहां पे. नाउ T dash ऑन प्लस. T dash ऑन प्लस. प्रोडक्शन नंबर 6. T dash टेंड्स टू एप्सिलॉन. सो T dash टेंड्स टू एप्सिलॉन. तो क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो हम यहीं पे मान के चलते हैं. T dash वो प्लस पे आपने चेक करा. T dash टेंड्स टू एप्सिलॉन हो रहा है यहाँ पर. T dash टेंड्स टू एप्सिलॉन हो रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या करा? आपका ये जो T dash है इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया. ठीक है. सो व्हाट इज लेफ्ट इन योर स्टैक? E dash एंड डॉलर बचा है और यहाँ पे एज इट इज बचा है. नाउ E dash को प्लस पे चेक करिए. E dash को प्लस पे चेक करिए. प्रोडक्शन नंबर 2. व्हाट इज प्रोडक्शन नंबर 2? E dash टेंड्स टू प्लस TE dash. तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ प्रोडक्शन क्या है? E dash tends to plus TE dash. Now this E dash will be replaced with the right hand side. TE dash dollar और input आपका as it is बचा. Now plus and plus. What I have told you? Terminal on the top, terminal on the input. If it is matched, pop them. Pop कर दिया. अब T को ID पर चेक करिए. T को ID पे चेक किया. प्रोडक्शन नंबर 4. T टेंड्स टू FT डैश. क्या लिया आपने? T टेंड्स टू FT डैश. नाउ दिस T विल रिप्लेस विद FT डैश. यहाँ पर E डैश है डॉलर और आपका इनपुट चल रहा है ID इंटू ID डॉलर. नाउ F ऑन ID. F ऑन ID. प्रोडक्शन नंबर 7. F टेंड्स टू ID. So what we are going to do? F will be replaced with ID. And remaining is same. Now your input is, what is your input? Your input is ID into ID and dollar. Now look at the top of the stack. Your top of the stack is ID. Your top of the stack is ID and the input is also ID, right? So what are we going to do? Pop, cancel. Now what is top of the stack? T dash. T dash on star. T dash on star. Production number 5. So आपने T dash
को स्टार पे देखा, आपको ये प्रोडक्शन मिला, स्टार एफ टी डैश। नाउ रिप्लेस टी डैश विद इट, स्टार एफ टी डैश एंड ई डैश टच को नहीं करेंगे तो एज इट इज हो गया। यहाँ पे क्या बचा है, स्टार दिस। नाउ स्टार एंड स्टार क्या करेंगे, कैंसिल, इसको पॉप करा, ये वाला इनपुट एक्सेप्ट हो गया। नाउ एफ ऑन आईडी, एफ ऑन आईडी प्रोडक्शन नंबर 7, एफ टेंड्स टू आईडी, ठीक है। सो एफ को मैंने आईडी से रिप्लेस कर दिया, टी डैश ई डैश डॉलर, यहाँ पे क्या बचा था, आईडी डॉलर। नाउ आईडी आईडी बोथ विल बी कैंसल्ड, ये पॉप हो गया, इनपुट एक्सेप्ट हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, टी डैश और टी डैश ई डैश, और यहाँ क्या बचा है, डॉलर। सो चेक टी डैश ऑन डॉलर, टी डैश ऑन डॉलर प्रोडक्शन नंबर 6 दैट इज नल। तो अगर नल आया तो आपका ये बचा, आपने क्या करा है, टी डैश टेंड्स टू नल, ये रिप्लेस करा है, यहाँ डॉलर बचा है। नाउ ई डैश को डॉलर पे चेक करिए, ई डैश को जब आप डॉलर पे चेक करोगे, प्रोडक्शन नंबर 3, व्हाट इज प्रोडक्शन नंबर 3, ई डैश टेंड्स टू नल। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ई डैश टेंड्स टू नल। इसका मतलब आपका ये जो ई डैश है ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नल हो गया। नाउ यू आर रिमेन विद द डॉलर। इफ योर स्टैक हैज रीच्ड टू द डॉलर and your input is also reached to the dollar, which means your string is accepted. आप लास्ट में क्या करोगे, your string is accepted, which means the grammar for which you have created this parsing table, it is validating this particular input string. तो ये input string इस grammar से accept हो रही है using LL1 parser. Now we are required to design the parse tree. अब parse tree बनाने के लिए हम क्या करेंगे, production वाला part use करेंगे. Okay. Now what is the first production that you have used? E dash, E tends to TE dash. तो E TE dash बना लिया, T tends to FT dash, T dash, F tends to ID, T tends to, I'm so sorry, T dash, this is T dash, T dash tends to null. Now E dash tends to plus TE dash. T tends to FT dash. F tends to ID. Now T dash tends to star F T dash. F tends to ID. T tends to null. And E dash tends to null. This is your parse tree is created. Now navigate the parse tree. ID plus ID into ID. बाकी सब null है. So your string is generated as ID plus ID into ID. Fine. So in this way, we can validate a particular grammar using a particular input string, whether it can be parsed or not. If it can be parsed, then you can create the parse tree like this. Now we'll see one more grammar and we'll draw the table as well as parse tree for that grammar, right? So the grammar that I'm going to take is, it is also very popular grammar. तो जिसे हम लेने जा रहे हैं, S tends to opening bracket, S closing bracket and null, very small grammar. It will actually generate all the pair parentheses. Fine. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, S के productions अलग कर लेते हैं और second production क्या है, tends to null. तो इस production का हम first निकालते हैं. First of S for the production number 1 will be opening bracket and first of S2 will be epsilon. Follow निकाल लेते हैं. Follow of S. What is follow of S? एक तो S को follow कर रहा है closing bracket and because it is a start symbol, so it will have dollar also. ठीक है. So let's design the table. Table design करते हैं. क्या क्या है हमारे पास, opening bracket, closing bracket and dollar. These are the terminals we have and there is one non-terminal S. ये non-terminal है हमारे पास. तो यहां पर आप कौन सी एंट्री करोगे, S on opening bracket, S on opening bracket. इसका मतलब opening bracket
कौन सा प्रोडक्शन है, S1, तो ये वाला प्रोडक्शन आप यहाँ पर लिख देंगे, पहला प्रोडक्शन आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नाउ क्लोजिंग ब्रैकेट की दूसरे वाले के फर्स्ट की बात हो रही है, सेकेंड प्रोडक्शन का फर्स्ट नल है, तो आपको क्या बताया था, उसका फॉलो यूज करना पड़ेगा। तो फॉलो में क्या क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डॉलर, तो S टेंड्स टू नल एंड S टेंड्स टू नल, बिकॉज कोई भी सेल में डबल एंट्री नहीं है, तो दिस ग्रामर कैन बी पास्ड बाय LL1 पार्सर, ठीक है। अगर डबल एंट्री आती तो वहीं पे कैंसिल कर देते, लाइक इट कैन नॉट बी पास्ड। अब हम चेक करते हैं एक इनपुट स्ट्रिंग। इनपुट स्ट्रिंग हमने क्या चेक करनी है, टेबल बनाना है। अब हमने स्टैक बना करके वैलिडेट करना और पास ट्री बनाना है। तो हम इनपुट स्ट्रिंग ले रहे हैं, ये इसको वैलिडेट करना है हमें कि ये आपका जो स्टैक है उससे पार्स होगा या नहीं होगा, और फिर इसका हमने पार्स ट्री बनाना है। तो टेबल बना लेते हैं, स्टैक इनपुट प्रोडक्शन, और उसके बाद हम पास ट्री बना के देखेंगे। सो स्टैक स्टार्टिंग विद द डॉलर एंड योर स्टार्ट सिंबल इज कैपिटल एस, ये स्टैक हो गया, आपको इनपुट दिया हुआ है ये, ठीक है। नाउ चेक एस ऑन ओपनिंग ब्रैकेट, एस ऑन ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा प्रोडक्शन है, ओपनिंग ब्रैकेट एस क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट एस क्लोजिंग ब्रैकेट डॉलर, आपने कौन सा प्रोडक्शन चूज करा है, ये प्रोडक्शन चूज करा है, दिस इज योर इनपुट। नाउ टॉप ऑफ द स्टैक एंड इनपुट इज मैच्ड, क्या करेंगे, पॉप करा, एक्सेप्ट कर लिया, क्या रिमेन है, एस क्लोजिंग ब्रैकेट डॉलर, यहां पे बचा है क्लोजिंग ब्रैकेट डॉलर। नाउ एस ऑन क्लोजिंग ब्रैकेट, एस ऑन क्लोजिंग ब्रैकेट नल हो गया, एस इज रिप्लेस्ड विद नल, क्या बचा है, ये बचा है और ये बचा है। नाउ ओपनिंग ब्रैकेट एक्सेप्ट हो गया, इसको पॉप करा, एक्सेप्ट हो गया, क्या करा है हमने, ये हो गया। नाउ डॉलर एंड डॉलर, व्हाट इज लेफ्ट, डॉलर एंड डॉलर, which means your string is accepted। पास ट्री बनाता है, पहला प्रोडक्शन S ओपनिंग ब्रैकेट S क्लोजिंग ब्रैकेट S tends to null, so navigate it, this is your string। So basically when you are using LL1 parser, so first of all you have to make sure your grammar should not be ambiguous, your grammar should not be left recursive, and your grammar should not be non-deterministic. If it is so, then you have to convert your grammar first, right? Otherwise your grammar cannot be parsed by LL1 parser because it is a top-down parser. Second thing, when you're designing a table, LL1 parsing table, then you have to make sure that every cell should have single entry. If it is having more than one entry, which means the grammar cannot be parsed by LL1 parser, right? So I'm keeping the video till here only, and in the next video we'll check a particular grammar and we'll see that key whether it is LL1 or not, right? So obviously जो entries हैं cell में वो एक से ज्यादा होंगी तो आपका LL1 नहीं होगा, otherwise आपका parser LL1 होगा।